Assalamu alaikum, dear students. I just wanted to briefly discuss the difference and relationship between these two categories. Usually, part of, I mean, social and historical analysis, we have the term of culture and civilization. Culture is a term usually we can find in sociological and anthropological literature. We have cultural anthropology, and culture is the key concept in sociology, and we have separate discipline called cultural studies, which combines insight from various critical insight from various disciplines. uh, so culture is the key term, and it simply it has two parts. One connotation of culture is that it is a general way of life of people, as we have defined everything which is socially learned and shared by the members of society. So it has a social basis, and whatever is social, whatever comes out of that, and that is recognized as a knowledge or as something else, material or non-material, as an idea, as a value, as a custom, that is culture, right? So it includes everything you can find in society. The word civilization is a term, usually is a category usually um discussed and analyzed in history of ideas particularly. uh, Not every social or cultural order is a civilization. The term of civilization contains in itself certain things which that social order has accomplished before it's being categorized as a civilization. So if a social order, if a culture is producing enough for people and they are happy with it, it's only at economic level, it may not be a civilization. When we call a social and cultural order a civilization, it means it has accomplished something, and it has accomplished in terms of art, literature, and some intellectual and aesthetic accomplishments. It has a distinct worldview, it has a distinct answers to the basic questions, to the perennial questions. सो उसकी अपनी एक फिलॉसफी है, उसका अपना एक रिलीजन का एक आइडिया है, उसका अपना कुछ ऐसा डिस्टिंक्ट है कि अब वो एक सेपरेट सिविलाइजेशन उसे कहा जा सकता है. So we have few civilizations in human history, but many cultures, maybe thousands of cultures, but few civilizations. Toynbee एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन है, उनकी एक बुक है A Study of History. Toynbee, let me write it. Toynbee, Arnold Toynbee, British historian. उनकी एक बुक है A Study of History, नीचे 10 वॉल्यूम्स में है, उसके एब्रिज्ड एडिशन भी है 2 वॉल्यूम्स में. ही हिमसेल्फ मेड इट एब्रिज्ड. तो टॉयनबी ने मेरे ख्याल में 21 या 25 सिविलाइजेशंस काउंट किए कि अब तक इतनी सिविलाइजेशंस आई हैं. इसी तरह एक मशहूर हिस्टोरियन है और ये प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी है, उनका नाम है विल ड्यूरांट. विल ड्यूरांट. सो विल ड्यूरांट जो है, उनकी मशहूर बुक है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन. स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन. उनकी एक बुक स्टोरी ऑफ फिलोसफी भी है. आई वुड एनकरेज यू टू रीड विल ड्यूरांट स्टोरी ऑफ फिलोसफी. और उनकी एक बुक है प्लेयर्स ऑफ फिलोसफी. आई थिंक कि हर अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को जिसका टेस्ट जो है या नहीं है, ही वुड डेवलप ए टेस्ट, राइट. तो विल ड्यूरांट की ये 2 किताबें, प्लेयर्स ऑफ फिलोसफी और स्टोरी ऑफ फिलोसफी. लेकिन जो स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन है वो मेरे ख्याल में 10 वॉल्यूम्स पे है. तो वो भी आप में से कुछ लोग पढ़ सकते हैं. 10 बुक्स ही हैं, 10 वॉल्यूम्स का मतलब कि इतना वो नहीं है. सो वो उसमें इंडियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, और मिसाल के तौर पे देयर आर मेनी सिविलाइजेशंस इन अफ्रीका, इन लैटिन अमेरिका, और फिर जो है इस्लामिक सिविलाइजेशन या मुस्लिम सिविलाइजेशन, और फिर जो है अभी रिसेंटली मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, राइट. सो दीज आर सिविलाइजेशंस व्हिच हैव अ डिस्टिंक्ट वर्ल्ड व्यू. ये लफ्ज मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड व्यू, इसके बारे में कुछ बात करता हूँ. वर्ल्ड व्यू, ये इकट्ठा लिखा जाता है वर्ल्ड व्यू. This is basically a translation of a German word. German
जर्मन लैंग्वेज जो है ना, दैट इज फेमस एंड नोटोरियस फॉर कंबाइनिंग वर्ड्स। तो उसमें आप कभी टेक्स्ट पढ़ेंगे जर्मन या सीखें तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स मिलेंगे आपको, मतलब 25-25 लेटर्स उसमें हैं बड़े बड़े। तो उसमें एक वर्ड है वेल्टन, वेल्टन शाउन है या शुआन है, ये मुझे भूल रहा है, कुछ ऐसा है, वेल्टन शाउन। तो इसका मतलब है कि दुनिया को, मतलब को देखना, यानी वो फलसफा आपका या वो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ माइंड जिसके थ्रू आप दुनिया को समझते हैं। तो ये टर्म जर्मन है, वहां से ये इंग्लिश में आई वर्ल्ड व्यू। इसका मतलब है कि हमारे जो बेसिक एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड यूनिवर्स, टुवर्ड नॉलेज, टुवर्ड गॉड, जो हमारे बेसिक आंसर्स हैं बड़े बड़े सवाल जो हैं कि हम कौन हैं, कायनात क्या है, खुदा क्या है, वजूद क्या है, इल्म क्या है, सो दैट बेसिकली क्रिएट्स वर्ल्ड व्यू। तो वर्ल्ड व्यू समटाइम्स कॉन्शियस होता है, समटाइम्स अनकॉन्शियस होता है, राइट। यानी जो भी हमारी बेसिक टेंडेंसीज हैं समटाइम्स हमें पता नहीं होता उनका, तो जो हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं वो किसी ना किसी वर्ल्ड व्यू। सो अगर कोई सोशल ऑर्डर जो है अपना वर्ल्ड व्यू क्रिएट करता है, अपनी फिलोसफी, अपना रिलीजन, अपना मेथड, चीज़ों की अपना एक कलर उसका डिस्टिंक्ट बनता है, तो फिर जो है उसको हम कहेंगे कि ये सिविलाइजेशन है, राइट। बट अगेन दीज आर ओवरलैपिंग टर्म्स, दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हर सोसाइटी का कोई ना कोई कल्चर तो है, ये जरूरी नहीं है कि वो सिविलाइजेशन भी, राइट। होप दैट मेक्स इट क्लियर। लेकिन ये इतना क्लियर भी नहीं होना चाहिए, ये अगेन मैं कहूँगा कि इसमें एक फजी कॉन्सेप्ट्स हैं ये, और इसकी दे हैव मोर देन वन कॉनोटेशंस, राइट। सो ये एक एस्पेक्ट है जिसमें मैंने डिफरेंशिएट किया, राइट, दिस लेवल। थैंक यू वेरी मच।